Good morning, dear students. Today I will discuss about the formation of steam. I am assistant professor in mechanical engineering department, IPS Academy Institute of Engineering Science. So today we will discuss about the formation of steam. In the last lecture we discussed about the boilers, how the boilers is working is there, and what are the classification of there. In this case, for using formation of steam, choosing a cylinder piston assembly is there, in which there is a ice is there, it's solid state, okay, at minus 10 degree centigrade. The mass of ice is 1 kg. मास जो है वो 1 किलोग्राम है. आइस लिया है माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर और हीट सप्लाई करेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ सिलेंडर. मीन्स दैट स्टीम बनाएंगे और आइस से बनाएंगे. अब आइस से क्यों बनाएंगे आपको पता लगेगा लेक्चर में ड्यूरिंग द लेक्चर्स. ओके, so in this case there is a freely moved piston is there which having a pressure 1.01325 bar is there, atmospheric pressure is there, and the heat is supplied from the bottom of this. Okay, and this process or picture is happening with the explained with the help of diagram, that is the temperature versus heat diagram or entropy diagram. Q versus S. Q मतलब heat और S मतलब entropy diagram. Okay. So these are the thermodynamic state. We know that A, B, C, D, E, F. Thermodynamic states is there. It's having a particular properties are there at particular state. Suppose I am standing here, so I have some distance from this wall, this wall. So there is just some one thermodynamic state, we can say that. Water is having a bottle, so there is one kind of state is there. It's having some temperature in the bottle, it's having some pressure in the bottle. When we heat up this water in the bottle, then the state is to be changed. So this is the thermodynamic state at point 1. At point 1, there is the state. What is the state? It's having a solid minus 10 डिग्री सेल्सियस पर आइस है. दैट इज द स्टेट 1. ये आपको दिख रहा है, ये ए स्टेट का डायग्राम है, जिसमें क्या है, आइस है माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम आइस है. इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01325 है और आप बाहर से हीटिंग कर रहे हैं, तो आपका जो स्टीम फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है. धीरे धीरे क्या होगा, आइस आपकी मेल्ट होगी, वाटर में कन्वर्ट होगी, फिर वाटर से क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा. तो ये जो प्रोसेस पूरी शो होगी ये डायग्राम के थ्रू, टीएस डायग्राम के थ्रू सारी इसमें डेफिनेशंस आएंगी. दिस लेक्चर इज आल्सो यूज फॉर अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टीम फॉर आरजीपीवी एफिलेटेड कॉलेजेस and the autonomous colleges which having a subject of fundamental of mechanical engineering or the steam formation. What is the prerequisite required for this lecture? Nothing but is only 11th physics is required, like a specific heat, what are the definition is there, specific heat, saturation temperature, saturation pressure. Again I repeated, these are all the definitions which is come into the pictures. Okay, so from the point A I started. First of all, the heat is supplied from the bottom of the cylinder is there, A state is there. So from A to B, the state A, it's having a solid. What is the meaning of S? Solid, L for liquid, V for vapor. Okay. So when the heat is supplied continuously to the ice at minus 10 degree centigrade, so the solid is converted into the liquid, the phase is to be changed. Okay. So from first A to B, B state is another state. From A to B, the heat is supplied. That is known as warming of ice. क्या बोलेंगे इसे A to B में? Warming of ice. आइस गर्म हो रहा है. How it is to be calculate? कैसे कैलकुलेट करेंगे? A से B तक हीट सप्लाई में माइनस 10 से 0 पे आपने जो दिया हीट, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? By using this formula, Q equals to mCp delta T. डेल्टा टी पढ़ा होगा आपने 11th फिजिक्स में. वार्मिंग ऑफ आइस, या इसको सेंसिबल हीट ऑफ आइस भी बोल सकते हैं, है ना. तो सेंस करें मीन्स क्या हो रहा है इसमें वार्मिंग ऑफ आइस में, फ्रॉम ए टू बी में द टेम्परेचर इज टू बी इंक्रीज बट फेज डज नॉट चेंज. ए टू बी टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है माइनस 10 से 0 डिग्री से, फेज सेम है, यहाँ भी सॉलिड है, यहाँ भी सॉलिड है, यहाँ पर सॉलिड है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. स्टेट चेंज हो गया, स्टेट चेंज होते हैं थर्मोडायनामिक्स में प्रोसेस बोलते हैं उसे. स्टेट, प्रोसेस, पाथ, cycles are there. So that is the one state is to be changed
another state that is known as process. Thermodynamics को process बोलते हैं. It is the warming of ice. So how it is to be calculated? By using this formula Q A to B. Mass, there is a 1 kg is there. Cp of ice, one first definition come into the picture. Specific heat of ice is there. As we know that from the school level, what is the specific heat? First, you have written the value of this 2.01, 2.1 we can say that kilojoule per kg into Kelvin, or 2.0112 we can consider as a. So it is the amount of heat required to change the unit mass of substance by 1 degree Celsius. 1 डिग्री सेल्सियस को एक यूनिट मास 1 kg सब्सटेंस को बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगे दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट. तो आइस के लिए कितनी लगती है? 2.1 किलो जूल पर केजी इंटू केल्विन. 1 किलोग्राम आपके पास आइस है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हीट सप्लाई करेंगे, -10 से बढ़ेगा, -9 पे जाएगा, 8 पे जाएगा. तो -10 से -9 पे जाने के लिए कितनी हीट लगेगी? 2.1 किलो जूल अप्रॉक्सीमेट स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम के लिए. तो टोटल अपन ने 1 किलोग्राम ही लिया है. डेल्टा टी टेम्परेचर कहाँ से कहाँ कर रहे हैं? -10 से 0 तक. तो फाइनल टेम्परेचर आपका 0, -10 +10 इंटू 10. डिफरेंस है डिग्री सेल्सियस डिग्री केल्विन में कोई मैटर नहीं, आप केल्विन में भी लेंगे तो भी डिफरेंस सेम ही आएगा. 21 किलो जूल हीट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम ए टू बी. वी कैन कंसिडर 21 किलो जूल लगभग लगेगी ए से लेकर बी स्टेट आने में लिए. हीट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम ए टू बी दिस वे. नाउ वी रीच एट पॉइंट बी. बी पर पहुंच गए. बी पॉइंट्स हैविंग अ solid ice is there at 0.01 degree Celsius, and point C there is a water is there, but it at 0 degree Celsius. L means liquid water is there. What is the meaning of M1? M1 is nothing but it is a mixture. किस का मिक्सचर है? यही दिख रहा है आपको, सॉलिड का और लिक्विड का, जिसमें क्या है आपके पास आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर. ये लाइन आप देखिए, आप स्ट्रेट लाइन है. What is the meaning of straight line? The temperature is to be fixed, but the phase is to be changed. Temperature fix है, phase change हो रहा है. That is known as latent heat of fusion. उसे कहते हैं latent heat. पढ़ा होगा आपने 11. वो स्टैंडर्ड है 335. कितनी लगती है? Q B to C 335 किलो जूल पर केजी. मतलब क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.01 डिग्री सेल्सियस पर आपके पास 1 किलोग्राम आइस का क्यूब है सॉलिड स्टेट में, और उसको लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करना है. तो कितनी हीट लगेगी? 335. दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ओके, फ्रॉम बी टू सी, एंड इन बिटवीन देम देयर इज मिक्सचर. बीच में क्या है? मिक्सचर है. मिक्सचर 1 किस का? यहां पर आपका आइस प्लस वाटर का मिक्सचर है. यहां पर 100% आपके पास वाटर है. सी पॉइंट पर व्हेन मूविंग फॉरवर्ड हीट बढ़ रही है आपकी, कंटिन्यूसली हीट सप्लाई कर रहे हैं आप. सी पर आपके पास 100% वाटर इज देयर. बी टू सी देयर इज ए लेटेंट हीट, मीन्स it is the amount of, what is the definition of latent heat? It is the amount of heat absorbed by the water without changing its temperature, only changing its phase. That is known as latent heat of fusion. So from B to C for latent heat of fusion is required 335. Means that 335 किलो जूल हीट लगेगी आपको 1 किलोग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर है उसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए. ओके, सो फ्रॉम B to C. अब पहुंच गए अपन पॉइंट C पर. अभी भी बॉयलर की तरह स्टीम बनना स्टार्ट नहीं हुई है, अभी अपन पानी पहुंचे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर. नाउ कंटिन्यूसली हीट इज सप्लाइड फ्रॉम दिस. अब आप बोलेंगे यार ये आपका जो सर आपने बनाया ये सिलेंडर ये एक ही स्टेट के लिए. अब आप बी के लिए बना सकते हैं, सी के लिए बना सकते हैं, डी के लिए बना सकते हैं. थोड़ा वॉल्यूम में डिफरेंस होगा. ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये टी क्यू डायग्राम है. इसमें टीवी डायग्राम नहीं है, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम नहीं है. ये डायग्राम क्या है? टेम्परेचर वर्सेस हीट के बता रहा है और एंट्रोपी का बता रहा है. एंट्रोपी आपको बाद में बताएंगे अब क्या होती चीज़ एंट्रोपी.
टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में दिख रहा है इस ऑर्डिनेट में, इधर आपको दिख रहा है हीट किलो जूल, किलो जूल्स में ले रहे हैं। C to D, व्हेन वी मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम C to D, अब आपके पास वाटर है, C पर स्टेट क्या है, व्हाट इज द थर्मोडायनामिक स्टेट पॉइंट C, यू कैन सी द डायग्राम वेयर एट पॉइंट C देयर इज ए liquid water is there which having temperature 0 degree, and D you have a liquid water is there but it could be 100 degree Celsius. Okay, so from C to D, that is the again supply sensible heat of water, sensible वाटर को लगेगी। अब यहाँ भी अपन लिख सकते हैं सेंसिबल हीट ऑफ आइस, यहाँ भी बोल सकते हैं वार्मिंग ऑफ वाटर, पानी गर्म हो रहा है, वार्मिंग ऑफ आइस, यहाँ भी सेंसिबल हीट ऑफ आइस लिख सकते हैं, बोथ आर द सेम थिंग, सेंसिबल हीट ऑफ आइस। इसको डिनोट करते हैं HF से, स्टीम टेबल में बताएंगे स्टीम टेबल क्या होती है आपको आगे। नाउ इन केस ऑफ C to D, हाउ इट इज कैलकुलेट सेंसिबल हीट ऑफ वाटर, अगेन बाय यूजिंग दिस फार्मूला Q इक्वल्स टू mCp डेल्टा T। अब Cp किसका लेंगे, वाटर का, Cp क्या होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की, वो क्या होती है 1 kg चल रहा है 4.18, means it is the amount of heat required to change the temperature by 1 degree Celsius of unit mass of water। 1 किलोग्राम वाटर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत पड़े दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट, और वाटर के लिए कितनी है वो 4.18। मतलब सपोज करो आपके पास वाटर पानी जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 1 किलोग्राम पानी 20 डिग्री सेल्सियस पे है, वो 21 पे करना है तो कितनी हीट लगेगी, स्टैंडर्ड 4.18, दैट इज द मीनिंग ऑफ। अब कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस C से D में, ये अपन निकाल रहे हैं B C to D। C से D में सर टेम्परेचर लग रहा है 100 माइनस 0 तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.01 100 डिग्री। QC to D ये लगभग आ जाएगा 418.23 किलो जूल। तो ये सेंसिबल हीट लगी C to D पहुंचने में। अब आप पहुंच गए D पॉइंट पर। अच्छा, ये जो स्टीम प्रोसेस, ये जो लाइन ड्रॉ की है मैंने TS डायग्राम में, दिस इज फॉर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसके लिए, ये 1.01325 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए ये लिखा है मैंने स्टार्टिंग में। तो उसके लिए आपको पता है सेचुरेशन टेम्परेचर। सेचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है, डेफिनेशन आपने स्कूल लेवल में पढ़ी होगी, सेचुरेशन टेम्परेचर, सेचुरेशन प्रेशर, कंप्रेस्ड लिक्विड, ये बताएंगे आपको आगे। अभी एट पॉइंट डी पर पहुंच गए। अब डी पॉइंट पर आपको पहुंचे तो आपको मिलेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज द सेचुरेशन टेम्परेचर ऑफ वाटर फॉर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपका प्रेशर 1.01325 बार है एटमॉस्फेयर में तो उसके लिए सेचुरेशन टेम्परेचर अपन जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसपे क्या हो रहा है, आपका वाटर जस्ट स्टार्ट बॉइलिंग, ओके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये 1 ATM के लिए। अब अगर आप प्रेशर कम ज़्यादा करेंगे तो सेचुरेशन टेम्परेचर भी कम ज़्यादा होगा। आपने पढ़ा होगा स्कूल लेवल में, व्हेन वी गोज फ्रॉम हिली एरियाज द प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो द ब्लड कम्स फ्रॉम द आवर नोज। जो पर्वतारोही जाते हैं ऊपर, आँख नाक में से ब्लड निकलने लग जाता है लो प्रेशर कारण, तो वहाँ प्रेशर कम होता है तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो सेचुरेशन टेम्परेचर वो कम होगा। ठीक है, देखेंगे वो, उसके लिए स्टीम टेबल यूज होती है। इसी टॉपिक में आप देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टीम टेबल, जो आपको ये बताएगी कि फलाना प्रेशर पर फलाना टेम्परेचर सेचुरेशन टेम्परेचर है 1 बार पर। आपको याद है, नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा कि प्रेशर इक्वल्स टू जब 1.01325 बार है उसके लिए सेचुरेशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रेशर 2 बार है, 5 बार है, 10 बार है तो क्या है, तो आपको स्टीम टेबल बताएगी। ओके, आगे बात करेंगे उसके बारे में। सो फ्रॉम C to D there is a sensible heat of water is there. When we go from D to E, at point D to E, water just start boiling and convert into steam. अब steam में बनना start होगा कहाँ पर, D point, D से start। तो D point पे जो liquid है उसे कहेंगे saturated liquid। क्या कहेंगे उसे, saturated liquid। यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर,
क्यों? ये लाइन सेचुरेशन लाइन है, ये सेचुरेशन टेम्परेचर की लाइन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सेचुरेटेड लिक्विड, क्या डेफिनेशन है सेचुरेटेड लिक्विड की? अ सेचुरेटेड लिक्विड इज अ लिक्विड विच इज अबाउट टू वेपोराइज, जो वेपोराइज होने वाला है, जस्ट कन्वर्ट होने वाला है आपका स्टीम में। रेडी? तो वो कहां से स्टीम होने वाला है? डी पॉइंट से। अब आपका स्टीम बनना स्टार्ट होगा। अब बॉयलर पता है अलग अलग प्रेशर पे काम करता है बॉयलर, 20 बार, 25 बार, 30 बार, तो उसके लिए सेचुरेशन टेम्परेचर अलग अलग है। ठीक है, अब सेचुरेटेड लिक्विड की डेफिनेशन बताया आपने, अ सेचुरेटेड लिक्विड, अ लिक्विड विच इज अबाउट टू वेपोराइज। अब वेपोराइज होने वाला है, यहां से वेपोराइज होने वाला है, धीरे 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 वेपोराइज हो रहा है। एट पॉइंट ई पर, एट पॉइंट ई पर वो कंप्लीटली वेपोराइज हो गया, लिक्विड कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द वेपर, एंड एट पॉइंट ई यू हैव फाउंड सैचुरेटेड वेपर। क्या मिलेगा आपको ई पॉइंट पर? सैचुरेटेड वेपर। ई पॉइंट पर मिलेगा सैचुरेटेड वेपर। और M2 क्या है? ये M2 मीन दिस इज अ मिक्सचर। किस किस का मिक्सचर? लिक्विड प्लस वाटर का, सॉरी लिक्विड प्लस, यहां पर आपका लिक्विड है और ये वेपर, नॉट वाटर, वेपर का, स्टीम का, है ना, L प्लस V। यहां पर पूरा आपका कंप्लीटली वेपर, यहां पर कंप्लीटली लिक्विड, तो सैचुरेटेड वेपर। सैचुरेटेड वेपर, अब डेफिनेशन ऑफ सैचुरेटेड वेपर क्या होगी? अ वेपर विच इज अबाउट टू कंडेंस, जो कंडेंस हो जाए। तो कंडेंसेशन क्या है? वेपर से अगर लिक्विड में वापस कन्वर्ट हो जाए। आपने देखा होगा प्रेशर कुकर, जो घर पे आप राइस वगैरह कुक करते हैं, दाल वगैरह कुक करते हैं, प्रेशर कुकर से स्टीम निकलती है ना। जब आप प्रेशर कुकर की जो स्टीम वॉल्व है वो ओपन करेंगे और हाथ लगाएंगे ऊपर, तो आपको पानी पानी दिख जाएगा। स्टीम तो निकल रही है वेपर फॉर्म में, और आपने हाथ लगाया तो आपको यहाँ कंडेंस दिखेगा, वाटर दिखेगा, कंडेंस हो गई वो वेपर। सो द सैचुरेटेड वेपर, हाउ इट वुड डिफाइन? अ वेपर विच इज अबाउट टू कंडेंस, जो कंडेंस होने वाली। तो एट पॉइंट वी पर मिलेगी आपको। अब D टू E में हीट कितनी लगी आपको? D से E तक जाने के लिए कितनी हीट लगी? Q फ्रॉम D टू E, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं उसे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यस, Q D टू E 2257 किलो जूल। इट इज स्टैंडर्ड, ये आपको याद रखना पड़ेगा। स्टीम टेबल में अलग अलग प्रेशर पर अलग अलग टेम्परेचर पर दी हुई है, पर आपको एट 1 ATM के लिए याद रखना पड़ेगा। ओके, सो from D to E, that is the latent heat of evaporation. Again, the definition of latent heat of evaporation is that it is the amount of heat absorbed by the substance without changing its temperature, only changing its phase. phase change हो रहा है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। कौन सी हीट लग रही है? लेटेंट हीट। यहाँ भी सेम डेफिनेशन, पर यहाँ पर आइस से वाटर में हो रहा था, सॉलिड से लिक्विड में, यहाँ पर क्या है? लिक्विड से वेपर में। ज़्यादा हीट लगेगी, कितनी लगेगी? 2257 किलो जूल। मीनिंग क्या है कि 1 किलोग्राम D टू E में 1 किलोग्राम आपके पास लिक्विड वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये स्टेट का मीनिंग, ये डी दिख रहा है आपको। 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम पानी है, सैचुरेटेड लिक्विड, वी कैन से दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू द सैचुरेटेड वेपर। 2257 kilojoules of heat required to achieve from this state to this state. Okay, now we reach from point E. As we know that types of steam में क्या होता है आपको पहले ही बताया था मैंने। There are 3 kinds of steam is produced from the boiler. बॉयलर से 3 टाइप की स्टीम प्रोड्यूस होती है, ये मैं आपको एक बार और बता दूं। वन इज द वेट स्टीम, सेकेंड वन ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम, थर्ड वन इज सुपर हीटेड स्टीम। अब नाम से समझ में आ रहा है वेट स्टीम। अ वेट स्टीम हैविंग दोज स्टीम विच हैविंग मॉइस्चर कंटेंट इज देयर, वाटर पार्टिकल इज देयर, जिसमें क्या होगा आपका वाटर पार्टिकल्स होंगे वेट स्टीम में। ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम, ड्राई मतलब सूखा, वाटर पार्टिकल्स निकल गए उसमें, तो स्टीम बची आपकी ड्राई स्टीम। व्हेन हीट इज सप्लाइड, कंटिन्यूसली हीट इज सप्लाइड, जब वेट स्टीम को आप और हीट देंगे और गर्म करेंगे तो पर्टिकुलर प्रेशर पर वो और
ड्राई एंड सेचुरेटेड स्टीम मिलेगी, मॉइस्चर कंटेंट हट गए. एंड सुपर हीटेड स्टीम, देयर इज अ टॉप क्वालिटी ऑफ स्टीम. It's having a no moisture content, it behave like a perfect gas. Okay, so that is the three kinds of steam. So steam बनना कहाँ पर स्टार्ट हो रही है ये आप देखेंगे इस पॉइंट पर, डी पॉइंट पर आपका स्टीम बनना स्टार्ट हो गया. That is a saturated liquid. Saturated liquid को आप और हीट देंगे तो आपकी स्टीम बनना स्टार्ट होगी. वेट स्टीम बनेगी पहले, वेट स्टीम बनेगी मीन्स डी टू ई के बीच में जितनी भी स्टीम है आपकी वो वेट स्टीम है. और ई पॉइंट पर पहुंचे आप, ई स्टेट पर पहुंचे तो आपको कंप्लीटली ड्राई एंड सेचुरेटेड स्टीम मिली. तो सेचुरेटेड वेपर को हम बोल सकते हैं ड्राई एंड सेचुरेटेड स्टीम यहां पर मिलेगी आपको. अच्छा, एक डेफिनेशन और आती है डी पॉइंट के पहले, जनरली बोलते हैं इसको कंप्रेस्ड लिक्विड और सबकूल्ड लिक्विड. सबकूल्ड लिक्विड या कंप्रेस्ड लिक्विड मींस जो आपके पास वाटर एग्जिस्ट है बिलो द सैचुरेशन टेम्परेचर. ये आपका सैचुरेशन टेम्परेचर कहाँ है यहाँ पर, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे नीचे फॉर पर्टिकुलर प्रेशर, प्रेशर की बात हो रही है. अगर 1 बार की भी बात कर रहे हैं तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आपके पास वाटर एग्जिस्ट है तो कंप्रेस्ड लिक्विड है, सबकूल्ड लिक्विड है. अगर आपका प्रेशर 5 बार है तो 90 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका वाटर एग्जिस्ट है वो कंप्रेस्ड लिक्विड नहीं है. वो डिपेंड करता है प्रेशर पर. आपको प्रेशर देखना पड़ेगा फिर कि प्रेशर कितना है, उसका सेचुरेशन प्रेशर इतना है तो सेचुरेशन टेम्परेचर इतना है, और सेचुरेशन टेम्परेचर से नीचे है दैट इज नोन एज कंप्रेस्ड लिक्विड और अ सबकूल्ड लिक्विड. तो इट इज द सबकूल्ड लिक्विड इज देयर. What is the definition of subcooled liquid? A liquid which is not about to vaporize, that is known as subcooled liquid. जो वेपोराइज नहीं हो रहा है अभी, compressed liquid at a particular pressure. जैसे 1 बार के लिए 100 डिग्रीज द सेचुरेशन टेम्परेचर इज देयर. ओके, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सबकूल्ड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर. नाउ अगेन वी गोस टू द फ्रॉम E to F. When we go for E to F, there is a heating of saturation temperature above then, that is known as superheated steam. अब superheated steam मिलेगी आपको saturation temperature से ऊपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से, और कंटिन्यूस हीट करेंगे आप 120, 130, 150. when the saturation temperature 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और कंटिन्यूस हीटअप करेंगे तो आपको superheated steam मिलेगी. How it is be calculated? By same formula, Q equals to mc by dt. So there is a another important terminology is there in between D to E. Okay, we have to discuss, that is the quality of steam is there. Quality of steam. या इसे कहते हैं एक और नाम ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम. ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम क्या होता है ये? इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स. एक्स से डिनोट करते हैं इसको. अब आपकी वेट स्टीम होती है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट है. अब कितना % मॉइस्चर कंटेंट है ये आपको थोड़ी पता है. हाउ इट इज टू बी कैलकुलेटेड? सो क्वालिटी ऑफ स्टीम, स्टीम तो मिल रही है, उसकी क्वालिटी क्या है, कितनी % ड्राई है, कितनी % वेट है, हाउ इट इज टू बी कैलकुलेटेड? उसको समझाने के लिए क्या करेंगे, डी टू ई में मैंने बताया आपको डी टू ई में क्या होगा. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड प्लस वेपर. सेचुरेटेड लिक्विड का वेपर का मिक्सचर है डी टू ई में. 1 kg स्टीम है. मैंने यहाँ से मान लिया 700 ग्राम स्टीम ले ली. 700 ग्राम स्टीम, 700 ग्राम स्टीम ली. मास ऑफ स्टीम, वेट स्टीम 1 किलोग्राम स्टीम बन रही थी, उसमें से 700 ग्राम स्टीम ले ली. अब वेट स्टीम ली. अब वेट स्टीम में क्या है, आपने बताया सर इसमें सेचुरेटेड लिक्विड भी है और सेचुरेटेड वेपर भी है. तो मास ऑफ सेचुरेटेड स्टीम मतलब mg, जी मतलब ड्राई, जनरली नोटेशन इस स्टीम में यूज करते हैं. ड्राई मान लिया मैंने, इसमें 400 ग्राम जो है वो आपकी ड्राई स्टीम है, मतलब वेपर पार्टिकल है. बाकी जो बचा हुआ क्या होगा, वाटर पार्टिकल 300 ग्राम. टोटल 700 ग्राम वेट स्टीम. और आपने बताया वेट स्टीम क्या होता है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड प्लस वेपर. ओके, सम मॉइस्चर कंटेंट इज देयर.
सो मॉइस्चर कंटेंट कितना है, वाटर पार्टिकल कितने, 300 ग्राम। बचा हुआ कितना, टोटल 700 है, 700 में से 300 गए, 400 बचे आपका। तो क्वालिटी ऑफ, हाउ टू फाइंड द क्वालिटी ऑफ स्टीम, बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ ड्राई स्टीम टू द मास ऑफ टोटल स्टीम। कितना हो गया आपका, यहाँ पर हो गया मास ऑफ ड्राई स्टीम कितना है आपका, ड्राई स्टीम 400 और डिवाइडेड बाय 400 प्लस 300, डिवाइडेड बाय 700 है ना, 4/7। तो आपका ये ड्राइनेस सेक्शन यहाँ से आ जाएगा। x इक्वल्स टू है ना, एग्जैक्टली अगर निकालना हो तो कैलकुलेटर से निकाल लेंगे 0.57, x इक्वल्स टू 0.57, 57%। ड्राइनेस फ्रैक्शन मीन्स दैट इट इज़ 57% ड्राई एंड 100% में से इसको माइनस कर देंगे तो आपका वेट का निकल जाएगा, वेटनेस फ्रैक्शन y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। 57% मतलब लगभग यहाँ पर 60% आपका क्या है, वो ड्राई है। दैट इज अ ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम और अ क्वालिटी ऑफ स्टीम। ओके, व्हेन वी रीच एट पॉइंट E, जब E पॉइंट पर पहुंच जाएंगे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, x इक्वल्स टू 1 फॉर ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम। ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम के लिए ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होती है, 100% ड्राई। तो y क्या है यहाँ पर, y इज द वेटनेस फ्रैक्शन, वेटनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम। गीली कितनी है, अगर किसी ने बोला कि 60% ड्राई है तो 40% गीली, 40% वेट है। तो वेटनेस फ्रैक्शन इक्वल्स टू y 1 माइनस एक्स, ऐसा निकाल सकते हैं। या इसका भी फार्मूला आपको लेना हो तो इट इज द रेशियो ऑफ, y से डिनोट करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर पार्टिकल टू द मास ऑफ टोटल स्टीम। 300 डिवाइडेड बाय 700, यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका टर्मिनोलॉजी विच इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड व्हेन द वी गोज फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ स्टीम from A to B, B to C. There are different kinds of states are there, processes are there. So these are the terminology. What is the dryness fraction is there, what is the wetness fraction. In a first year examination, the definitions come into the exam. The examiner may ask you how to define the saturated liquid is there, how to define the saturated vapor is there, what is the specific heat, latent heat of vaporization, latent heat of fusion is there. Okay, so this kind of definition is there. And when we do the numerical problem, these definitions are very useful for doing the numericals in case of first year examination as point of view. And for the mechanical engineering students, there is a second year, third year, there is a subjects of their thermal subjects in which which is very important. This is the basic of the formation of steams. Okay, so now we move forwards. First we have to rough there. So next terminology, that is known as enthalpy of steam. Enthalpy, it is a one kind of total heat is there. It is the amount of heat absorbed by the substance from 0 degree centigrade to up to the conversion of steam. It may be for wet steam, dry and saturated steam, superheated steam. Means for we can say at point this 0 degree Celsius से आपको कहाँ तक की heat लग रही है, that is known as enthalpy. It is a measure from 0 degree centigrade. So enthalpy of wet steam, H is the notation for that, H weight for enthalpy of wet steam. It is the formula for that, calculation of heat, HF, sensible heat of water, which is required for this, HF, this one. Latent heat of evaporation, we can note it by HFG, HF plus HFG. This is the sensible heat of water plus X into HFG. This is the formula for H weight, where HF is the sensible heat of water, X is the dryness fraction of steam, recently discussed, HFG latent heat of vaporization. Suppose there is a
a boiler generate the steam at 20 bar, so you have to calculate the enthalpy of steam at 20 bar. So you have to see the steam table at 20 bar pressure, what is the saturation temperature is there, what is the value of enthalpy of steam at point 20 bar, HF की वैल्यू आपको स्टीम टेबल से पढ़नी होगी. X ड्राइनेज सेक्शन दिया होगा कि आपको वेट स्टीम बनानी है, तो उसका ड्राइनेज सेक्शन 0.8 है या 0.7 है, ये गिवन दिया होगा. HFG की वैल्यू भी दी होगी, जैसे मैंने बताया कि HFG की वैल्यू जो होती है 2257 होती है. अभी अपन ने कैलकुलेट किया ना, बताया 2257, इधर होता है 418 समथिंग आया था किलो जूल. ये 1 बार के लिए. अगर आपको 20 बार की स्टीम बनाना है तो स्टीम टेबल से 20 बार की वैल्यू देखेंगे एंड देन पुट अप करेंगे. दैट इज द एंथैल्पी ऑफ स्टीम. सिमिलरली फॉर एंथैल्पी ऑफ ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम, H dry, HF plus HFG, or we can directly written as HG. G for dry steam, F for fluid, we can consider as a for sensible heat. HFG, that is a latent evaporation. As we know that, बताया था मैंने कि आपको E पॉइंट पर X की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. Completely saturated liquid converted into the saturated vapor means X equals to 1. तो X equals to 1 यहाँ से हटा देंगे, क्या बचेगा, HF plus HFG, that is the enthalpy value of saturated steam. Another one is enthalpy of superheated steam. सुपरहीटेड स्टीम के लिए अगेन फार्मूला एस सुपर. अब इसको यहाँ से मैच करके देखें. जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स फार्मूले याद कर लेते हैं पर इसमें देखते नहीं हैं. यहाँ से आपको पूरा क्लियर दिखेगा, कोई याद, नो नीड टू रिमेंबर द फार्मूलाज, यू हैव टू मेक द फार्मूलाज आई थिंक. सो फर्स्ट यू कैन सी फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस टू दिस देयर इज HF, दिस इज द HF प्लस HFG ड्राई एंड सैचुरेटेड के लिए एट पॉइंट C2E. एंड फॉर मूविंग फॉरवर्ड सुपर हीटेड स्टीम, अब सुपर हीटेड स्टीम के लिए आपको यहाँ से जाना है, लेंगे आप यहीं से C पॉइंट से, इट इज द रेफरेंस लेवल. एंथैल्पी के लिए 0 डिग्री सेल्सियस से ही लेंगे, बट आपको पता है बॉयलर में कुछ 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी तो देंगे नहीं, 20 पे देंगे, 30 पे देंगे, 35 पे देंगे, तो वो मुझसे माइनस कर देंगे एट द एंड. सबसे पहले एस सुपर कहाँ निकालेंगे, यहाँ से लेके बात हो रही है यहाँ तक के लिए, तो ये तो दोनों प्लस होंगे, HF प्लस HFG, HF प्लस HFG, ये प्लस. अब और आगे की बात हो रही है यहाँ तक की. सुपर हीटेड स्टीम क्या होती है, अ स्टीम विच इज हैविंग मोर देन द सेचुरेशन टेम्परेचर, उसका जो टेम्परेचर है वो सेचुरेशन टेम्परेचर ज़्यादा है. अ सुपर हीटेड स्टीम, दैट स्टीम विच हैविंग अ temperature more than the saturation temperature. For 1 atmospheric pressure the saturation temperature 100 degree centigrade, 100 से ज़्यादा. 20 बार होगा तो 20 बार पे जो स्टीम टेबल से देखेंगे saturation temperature क्या है उससे ज़्यादा, means that saturation temperature ज़्यादा यहाँ पर. प्लस ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, Cp डेल्टा T अगेन इतनी वैल्यू प्लस CPS क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम की बात हो रही है अब. CPS स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, इसकी होती है 2.1 से लेकर 2.2 तक किलो जूल पर kg इंटू केल्विन. स्पेसिफिक हीट वही डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस. अब स्टीम के लिए कितना होता है 2.01, 1 डिग्री टेम्परेचर स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाना है आपको 1 किलोग्राम के लिए, तो उसके लिए 2.01 हीट लगेगी. 2.1 से लेकर 2.2 तक जो रेंज दी है, ये रेंज वेरी करती है, तो वो स्पेसिफिक हीट इंटू T सुपर माइनस T सेचुरेटेड, जहाँ तक आपको सुपर हीटेड स्टीम बनानी है, और सेचुरेशन टेम्परेचर, उसका सेचुरेशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड. So this is for the 1 bar pressure के लिए. So thank you for this lecture.
in the next lecture we discuss about the numerical problem which is based on the steam. Okay, thank you.